Here first given question is find a, b and n. Find the value of a, b and n. Find the value of a, b and n in the expansion of a plus b raised to n. Here you have to perform expansion of a plus b raised to n. So given binomial is a plus b raised to n, where a is first term, b is second term, and n is the index. You have to find the value of this first term, second term, and index in the expansion of this a plus b raised to n. If first three terms of the expansion are here, what we are given? Here we are given first three terms of the expansion. So first term, tell me what is the first term in the expansion of this a plus b raised to n? It's a nc0, nc0 a raised to n. This is the first term in the expansion of this a plus b raised to n. So this value is given. First term is 729. First three terms in the expansion of a plus b raised to n is given. So by using general formula, we can write this first term. We can also write this second term. First three terms means first term, second term, and third term. So what is the value of second term? It's a nc1, nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 equal to 7290. This is the value of second term. है ना? सेकंड टर्म के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर a raised to b minus r b raised to r. Done. So third term is put r equal to 2. So nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2, that is b square, and third term of this expansion a plus b raised to n is given 303 375. Done. This is given. इसमें किसी को कोई डाउट? These are the three given terms in the expansion of a plus b raised to n. So we can write first term, second term, and third term by using this general formula with the expansion of binomial theorem. Done. Say this one is a equation number 1, this one is a 2, and this one is a equation number 3. Done. So now we are taking the ratio of this equation 3 and equation 2. So now from equation number 3 and equation number 2, what we are doing? We are taking the ratio of these two terms, T3 by T2. So T3 is NC2. It's a NC2 a raised to n minus 2 upon b square. NC2 a raised to n minus 2 b square. T3 upon T2. So NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1 equal to, this one is 303 375 upon 7290. रेशियो लिया, बी रेशियो को सिंप्लीफाइड करें. देयरफॉर NC2 की वैल्यू निकाले तो क्या होगा? इट्स n फैक्टोरियल अपॉन, है ना, ये लिख रहे हैं NC2, इट्स n फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 फैक्टोरियल, n minus 2 फैक्टोरियल upon 2 factorial. Done. Multiply by this one a raised to n minus 2, this one is b square upon nc1, it's again n factorial upon n minus 1 factorial upon 1 factorial. 1 factorial is 1. Multiply by a raised to n minus 1 upon b. So that simplification is 25 by 6. Now next page, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है ना, ये कटिंग करके अभी किया हमने 25 by 6. नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन ये देखो. So this one is ये n factorial cut. This is denominator of denominator will go into numerator. So it's a n minus 1 factorial into 1 factorial is 1, not writing, upon n minus 2 factorial
into 2 factorial which is 2 multiply by ये न्यूमरेटर a raised to n minus 2 upon b square by b. So एक b cut, so this one is b, this one is a raised to n minus 1. देखो what is the simplification of this a raised to n minus 2 upon a minus 1. ऊपर एक कम पावर है, देखो ऐसे a होगा a स्क्वायर अपॉन a क्यूब होगा तो क्या बचेगा, डिनोमीटर में एक पावर बचेगा 1 अपॉन a, ये दोनों में डिफरेंस 1 है तो ये बड़ा है तो न्यूमरेटर को डिनोमीटर में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो n माइनस 1 माइनस n प्लस 2, सो 1 अपॉन a बचेगा, इसको कट कर दिया 1 अपॉन a इक्वल टू 25/6. क्लियर. So this one is b by a and this one is n minus 1 factorial upon n minus 2 factorial. So n minus 1 factorial को reduce करेंगे तो it's n minus 1 n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial into 2 into this one is b by a equal to 25/6. Done. Again n minus 2 factorial cut, so this will be n minus 1 by 2 into b by a equal to 25/6. Say this one as a result number 1 है ना. ये रिजल्ट हमारा निकला ये दोनों का डिवीजन लेके, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन नंबर 1. सो इट्स NC1 यहाँ पर डिवीजन करें T2 minus T2 upon T1. So now T2 upon T1 is NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1 upon NC0 1 ही होता है so it's a raised to n equal to 7290 upon 729. This will be equal to 10. इसका सिंप्लीफिकेशन 10. अभी इसका क्या होगा, NC1 is n factorial upon n minus 1 factorial, वो n ही आएगा है ना, NC1 n ही होता है. सो इट विल बी ऐसे लिखे NC1 n और ये a रेस टू n माइनस 1 अपॉन a रेस टू n, तो डिनोमीटर में एक a बचेगा a और ये b इक्वल टू 10. सो वी आर गेटिंग b by a इक्वल टू 10/n. ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया. इसको रिजल्ट 4 बोलना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 दिया है. दिस इज रिजल्ट 4. सो से दिस वन इज रिजल्ट 5 एंड पुट इन रिजल्ट नंबर 4. ये क्लियर हुआ. NC1 n a raised to n minus 1 upon a raised to n 1 upon a b raised to 1 b इक्वल टू ये कट हो गया 10. क्लियर. तो ये b by a की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं. सो हियर वी आर गेटिंग n minus 1 by 2 into b by a equal to 10/n equal to 25/6. ये पूरा इक्वेशन n के फॉर्म में आ गया. सिंप्लीफाई दिस वन. सो दिस वन इज n minus 1 upon n, 2 5 are 10 और ये 5 5 are 25 कट हो गया. सो इट्स 5/6. सो n minus 1 upon n equal to 5/6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Therefore, this one is 6n minus 6 equal to 5n. 6n minus 5n. So it's n equal to 6. n equal to 6. Done. Now n equal to 6 आ गया. We have to find the values of a, b and n. So now result number 1. What is our result number 1? Result 1 is NC0 a raised to n equal to 729. NC0 is 1. So it's a raised to n equal to 729. So from result 1, we can say NC0 a raised to n. NC0 is 1. Now NC0 a raised to n equal to 729. NC0 is 1. Therefore, we can write a raised to n equal to 729. What is the value of n? N is 6. And therefore, we can say a raised to 6 equal to 729. 729. कौन से नंबर का पावर 729 होगा? 6 पावर. 3 raised to 6 is 729.
and therefore we are getting a equal to 3. A equal to 3. Done. So now put this a equal to 3 in equation number 5. So put in equation number 5. 5 says that b by a is 3 equal to 10 by n, and n is 6. Done. So it's a 3 2 is 6, 2 5 is 10. So our answer is b equal to 5. So we're getting the values of n, a and b is the answer. Done. So our answer is value of a is 3, value of b is 5, and value of n is 6. Clear students? So this is how you can solve your question number 1. Simplification में आपको थोड़ा एक्यूरेट रहना है. Now next question, question number 2. So here for the second question, find the a. Here you have to find the value of a if the coefficient of x square and x cube, coefficient of x square and x cube in the expansion of binomial is 3 plus ax raised to n. In the expansion of this binomial, what we are given, coefficient of x square and x cube are equal. Coefficient of x square term is equal to coefficient of x cube term. Coefficient of these two terms are equal in the expansion of this 3 plus ax raised to 9. So find the value of a. है ना, हमें a की जो वैल्यू है वो निकालनी है. तो देखो जनरल टर्म, व्हाट इज द जनरल टर्म, tr plus 1. tr plus 1 is nothing but the ncr, or n is 9, so it's a 9cr into a raised to n minus r. Our a is first term, which is 3, so it's a 3 raised to n minus r, it's a 9 minus r, into b raised to, or b is ax, b raised to r. So this is our general term. Done. So here in this expansion, coefficient of x square and coefficient of x cube are equal. So here if you want to find the coefficient of x square, what do you have to do? For coefficient of x square, for कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म x का पावर 2 होना चाहिए. यहाँ पर x का पावर क्या है, r. तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हाट यू हैव टू पुट, यू हैव टू पुट r इक्वल टू 2. यस और नो, है ना. दिस इज द जनरल टर्म. इन दिस जनरल टर्म we are getting x raised to r, and here we require coefficient of x square. So for the coefficient of x square, ये सारे coefficient of x square है. So to find the coefficient of x square, you have to put r equal to 2. So here we are getting third term in which x square power is there. Put r equal to 2. So it's a nc2 3 raised to 9 minus 2 into ax raised to 2. Done. So our third term will be 9c2 3 raised to 7 a square x square. Done. So this is the third term in which we are getting x square power. So here coefficient of x square, what is the coefficient of x square? This term. So here coefficient of x square term is क्या मिला हमें, 9c2 3 raised to 7 a square. Clear students? This is the coefficient of x square. Same way we have to find the coefficient of x cube, because in the question we are given coefficient of x square is equal to coefficient of x cube. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमने r इक्वल टू 2 पुट किया. नाउ सेम फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, व्हाट यू हैव टू पुट, r इक्वल टू 3. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, that is for the coefficient of x cube, what you have to do, you have to put r equal to 3.
वी हैव टू पुट r इक्वल टू 3 टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो देखो r इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ टर्म मिलेगी। वी आर गेटिंग फोर्थ टर्म इन विच, हाँ t4, वहां पर हमें x की पावर 3 मिलेगी। सो पुट r इक्वल टू 3 हियर, इट्स 9c3, है ना, r इक्वल टू 3 पुट करना है। सो 9c3 3 रेज टू 9 माइनस 3 इंटू ax रेज टू 3। तो देखो फोर्थ टर्म में हमें x क्यूब मिल रहा है, सो दैट विल बी 9c3 3 रेज टू 6 a क्यूब x क्यूब। दिस इज आवर फोर्थ टर्म, और ये फोर्थ टर्म में हमें x क्यूब का कोएफिशिएंट मिला, क्या मिला, दिस वन। सो दिस वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब टर्म, क्या वैल्यू मिली कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब की, ये 9c3 3 रेज टू 6 a क्यूब। डन। Now what we are given, coefficient of x square is equal to coefficient of x cube given. So now we are given that coefficient of x square is equal to coefficient of x cube। दोनों कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल है, ये दोनों को कंपेयर करवाएं। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 9c2 3 रेज टू 7 a square equal to 9c3 3 रेज टू 6 a क्यूब। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये निकालना है, तो इसमें से आपको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकालनी है। डन। तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, 9c2 अपॉन 9c3 ले ले। सो व्हाट इज दी 9c2, पहले सिंप्लीफाई कर दो, 9c2 इंटू 3 रेज टू 7, है ना, और ये इसके डिवीजन में लाओ, 9c3 इंटू 3 रेज टू 6, और यहाँ पर होगा a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, तो a क्यूब बाई a स्क्वायर होगा a, और इसका सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर होगा। सो 9c2 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू न्यूमरेटर 3 रेज टू 7, हियर 9c3, so it's a 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 रेज टू 6 ये था, दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर कटिंग क्या होगा, 9 फैक्टोरियल कट, 3 रेज टू 6 फैक्टोरियल, ये 3 रेज टू 7, तो ये कट हो जाएगा, जो 3 बचेगा, और ये 6 फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन करो, तो ये 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल कट, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 7, और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको कट कर दो तो यहाँ पर बचेगा 3। डन। सो ऊपर क्या बचा, 3 3 जा 9, और नीचे 7, सो 9 बाई 7 इक्वल टू a, दिस द वैल्यू ऑफ a, दैट इज आवर आंसर। सो वैल्यू ऑफ a इज 9 बाई 7। Clear? So this is how you can solve your question number 2. Clear students? सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मिससेलेनियस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन। So in this third question, find the coefficient of x raised to 5 in the product of, है ना, क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5, x raised to 5 वाली जो नंबर आएगी, टर्म आएगी, उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन द प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस 2x रेज टू 6 1 माइनस x रेज टू 7, ये जो बाइनोमियल है ना, इसकी 6 पावर 7 पावर, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, और आपको बहुत सारी टर्म मिलेगी, उसमें जो x रेज टू 5 वाली टर्म है ना, उसका कोएफिशिएंट निकालना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे करना है देखो,
x रेस टू 5 वाली टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालें? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो और जो रिजल्ट आए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और मल्टीप्लीकेशन में जो x रेस टू 5 वाली टर्म आए उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। डन। तो करना कुछ नहीं है लेकिन लेंदी है। So what is the expansion of this 1 plus 2x raised to 6 by using binomial? ना binomial theorem यूज करना है। So it's a 6c0 ऐसे होगा 6c0 1 raised to 6 2x raised to 0 plus 6c1 1 raised to 5 2x raised to 5 ये 0 और ये 2x raised to एक एक पावर इंक्रीज होगा तो ये 1 पावर आएगा प्लस 6c2 1 raised to 4 2x raised to 2 यहाँ पर जो नंबर आएगा ना वो 2x का पावर होता जाएगा प्लस 6c3 2x क्यूब प्लस 6c4 2x raised to 4 प्लस 6c5 2x raised to 5 प्लस 6c6 2x raised to 6 है ना। ये एक्सपांशन हुआ ये पहली टर्म का, फर्स्ट टर्म का। नाउ वी विल परफॉर्म एक्सपांशन ऑफ दिस सेकंड टर्म, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट आएगा, है ना, ये डॉट किया मैंने, और ये मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट। यहाँ पर 7 1 माइनस एक्स रेस टू 7 माइनस है तो अल्टरनेटिवली टर्म्स प्लस माइनस आएंगे और ये 7c0 से स्टार्ट करना है। तो इट्स 7c0 माइनस 7c1 x रेस टू 1 प्लस 7c2 x स्क्वायर माइनस 7c3 x क्यूब प्लस 7c4 x रेस टू 4 माइनस 7c5 x रेस टू 5 प्लस 7c6 x रेस टू 6 माइनस 7c7 x रेस टू 7। डन। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन इज क्या होगा, ये 60 61 62 63 सब वैल्यू है ना, वो वैल्यू पुट करते हैं, ये सब वैल्यूज। डन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। ये सबका आंसर पता है, 6c01 आएगा, 6c1 6, 6c2 की वैल्यू क्या आएगी 15, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 1, है ना। 60 61 62 अगर पता नहीं है तो आप वैल्यू निकाल लेना, है ना, ऐसे आप सिंक्रोनाइजेशन में आएगी ये। और ये 7c0 7c1 72 की वैल्यू 7c01 7c1 7 7c2 क्या आएगा 21, वेरी गुड। 7c3 वेरी गुड 35, अगेन 7c4 35, अब ये फिर से वैल्यू रिपीट होगी, है ना, 21 7 और 1। देखो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है 1 6 15 20, अगेन 15 6 1, तो आपको ये 1 to 7 तक की वैल्यू सब निकाल देनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करके आंसर लिखे। So this will be 1 plus 6 into 2x 12x plus 15 into 2x square 4x square 15 4 is 60x square 60x square plus 20 into 2x cube 8x cube 20 into 8 160x cube plus 15 into 8, so it's a 240x raised to 4 plus 6 into 2 raised to 5 32 6 180 12 192
192 एक्स एस टू 5 मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन आप देखते रहना ना, कभी कभी लोचा हो जाता है। 6 2 रेस टू 6 64, so it's a plus 64 x raised to 6 डन। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में दूसरा ब्रैकेट, ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, ये तो डायरेक्टली लिख आएगा। सो 1 माइनस 7x प्लस 21 एक्स स्क्वेयर माइनस 35 एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स रेज टू 4 माइनस 21 एक्स रेज टू 5 प्लस 7 एक्स रेज टू 6 माइनस 1 नहीं लिखते, एक्स रेज टू 7। डन, दोनों टर्म आ गई। अभी बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। हमने स्टडी किया था ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल विद बायनोमियल, कैसे करते थे हम? ए प्लस बी होता है, उसके साथ सी प्लस डी होता है, तो क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी और डी के साथ, और बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी और डी के साथ। बायनोमियल विद बायनोमियल, लेकिन यहाँ पर बायनोमियल नहीं है, 7 टर्म को मल्टीप्लाई करना है 8 टर्म के साथ। इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5। तो देखो एक्स रेज टू 5 कहाँ का मिलेगा हमें, कौन कौन सी टर्म की मल्टीप्लीकेशन पर मिलेगा? So here we are writing directly the coefficient of x raised to 5 term. Done? कैसे देखो? So now coefficient of x raised to 5 term. देखो ये मैं 1 को ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1, उसके बाद सेकंड टर्म मिलेगी 7x, उसके बाद 21x क्यूब। ऐसे ऐसे मुझे 1 का मल्टीप्लीकेशन ये टर्म के साथ करूंगा तो पहला आंसर मुझे आएगा 1 इंटू माइनस 21 एक्स रेज टू 5। हम सिर्फ एक्स रेज टू 5 का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो पहला जो मुझे मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 इंटू माइनस 21 मिलेगा। क्लियर? ये समझ में आया? ये 1 को माइनस 21 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे एक्स रेज टू 5 वाली टर्म मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन खत्म। उसके बाद आई विल कंसिडर दिस सेकंड टर्म। 12x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x पावर मिलेगा, x स्क्वायर पावर मिलेगा, एक्स रेज टू 4 पावर मिलेगा, है ना, 4 पावर मिलेगा। और यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये दोनों टर्म का, तो 12x इंटू 35 एक्स रेज टू 5 का मल्टीप्लाई होके मुझे x रेज टू 5 मिलेगा। तो सेकंड कोफिशिएंट जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा 12 इंटू 35 का। आ रहा है समझ में? उसके बाद कहाँ पहुंचे थे, ये 60x स्क्वायर को करके, अरे यार स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके, ये बारी बारी से कॉल आ रहा है एकदम इनके। 60 एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये -35 से, है ना, तो 60 इंटू -35, 60 इंटू -35 प्लस 160 एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स 160 इंटू 21, 160 इंटू 21। डन। अभी ये 4 पावर को 1 पावर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 240 इंटू -7, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। डन। अभी ये 192 एक्स एस टू 5 प्लस 192 का मल्टीप्लीकेशन एक्स एस टू 5 तो कॉन्स्टेंट के साथ 1। डन। बस ये सारा मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा एक्स एस टू 5 का कोफिशिएंट। सिंप्लीफाई करो और मुझे आंसर दो। 1 इंटू -21 प्लस 15 इंटू 35 420 प्लस माइनस हो जाएगा ये 60 इंटू 35 2100, 160 इंटू 21 24/7